آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بریکنگ دیں۔ پنجاب حکومت کا آئندہ بلدیاتی انتخابات مرحلہ وار کرانے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں جنوبی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے 2 مراحل میں بلدیاتی انتخابات کی تجویز سامنے آئی تھی۔ پنجاب حکومت کا آئندہ بلدیاتی انتخابات مرحلہ وار کرانے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں جنوبی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے 2 مراحل میں بلدیاتی انتخابات کی تجویز سامنے آئی تھی۔ الیکشن کمیشن نے 2 مراحل میں انتخابات کی تجویز دی۔ حکومت پنجاب کے الیکشن کمیشن کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات اور وسائل درکار ہیں۔ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں ارکان کو تجویز بارے اعتماد میں لیا گیا۔ جنوبی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا سے متعلق مشاورت ہو رہی ہے۔ مرحلہ وار انتخابات کرانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ پنجاب میں پہلے مرحلے میں جنوبی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے 2 مراحل میں بلدیاتی انتخابات کی تجویز سامنے آئی تھی۔ پنجاب حکومت کا آئندہ بلدیاتی انتخابات مرحلہ وار کرانے کا فیصلہ۔ پہلے مرحلے میں جنوبی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے۔ مزید بات کریں گے علی رام کہیے گا، بلدیاتی انتخابات کرانے کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، مرحلہ وار کروائے جائیں گے اور سب سے پہلے ساؤتھ پنجاب ہوگا؟ جی بالکل، کیونکہ وزیر پنجاب کی صدائی میں کابینہ کا اہم اجلاس ہوا اور اس اجلاس کا مین ایجنڈا تھا بلدیاتی انتخابات اور بلدیاتی جو نظام ہے اس کے 2021 کے مسودے کی منظوری۔ تو وہ بلدیاتی 2021 کے مسودے کی منظوری تو پنجاب حکومت نے کل رات باقاعدہ دے دی تھی، لیکن اس میں مختلف تجاویز یہ دی گئیں کہ آئندہ انتخابات کیسے کروائے جائیں، اور اس میں مختلف وزراء نے تجاویز دی وزیر پنجاب کو کہ آئندہ انتخابات کے حوالے سے ان اضلاع کا چناؤ کیا جائے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بہت زیادہ مضبوط ہے۔ تو اس پر مختلف وزراء سے رائے بھی لی گئی، لیکن وزراء نے حامی نہیں بھری، لیکن 3 وزراء جو ہیں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اضلاع میں الیکشن کرانے کے لیے حامی بھرتے ہیں اور اس سے وہ پاکستان تحریک انصاف کو وہاں سے کامیابی دلوائیں گے۔ اب ان میں ملتان ضلع ڈویژن شامل ہے، میاں والی اور فیصل آباد۔ تو ان اضلاع میں فیصلہ کیا گیا کہ جلد انتخابات کروائے جائیں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی مختلف تجویزیں دی گئی کہ 2 مرحلوں میں الیکشن ہوگا، کیونکہ انتظامی اور مالی وسائل جو ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہیں اور اقدامات بھی کرنے ہوتے ہیں۔ اب اس پر جنوبی پنجاب کا سب سے پہلے چناؤ کیا جائے گا کہ جنوبی پنجاب میں سب سے پہلے انتخابات کروائے جائیں، اور جنوبی پنجاب میں بھی خاص طور پر ان اضلاع میں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں پہ ان کے ووٹنگ زیادہ ہے تو وہاں پر ان کا انتخاب کیا جائے گا۔ بہتر علی یہ کہیے گا، پی ٹی آئی کا تو وہاں پر ووٹ بینک زیادہ ہے، اس لیے وہاں یہ کہا جا رہا ہے، یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک انتہائی مائنر سی وجوہات ہے، اور جہاں پر پی ایم ایل این سٹرانگ ہے وہاں کب کروائے جائیں گے؟ آخر وہ بھی تو پنجاب کا بھی حصہ ہے نا۔ دیکھیں، کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن کے آپ نے نتائج تو دیکھے ہیں، اس پہ نتائج آنے کے بعد کیونکہ پاکستان تحریک انصاف دیکھا جائے تو جیتی ضرور ہے، لیکن وہ جیت بھی ان کی بمشکل تھی۔ تو اس میں اب کیونکہ کیبنٹ میں وزراء نے بھی یہی کہا کہ جو کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن تھے اس میں جو کامیابی ہوئی ان کو وہ بہت مشکل ہوئی ہے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایسے اضلاع کا انتخاب کیا جائے پہلے مرحلے میں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار زیادہ مضبوط ہوں گے۔ علی رام آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملتان شمالی بائی پاس سے ہیڈ محمد والا روڈ اب ہوگا ڈبل۔ حکومت پنجاب نے 11 کلومیٹر طویل روڈ کی منظوری دے دی ہے۔ 2 رویہ روڈ پر 1 ارب 18 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ ملتان شمالی بائی پاس سے ہیڈ محمد والا روڈ اب ڈبل ہوگا۔ حکومت پنجاب نے 11 کلومیٹر طویل روڈ کی منظوری دے دی ہے۔ 2 رویہ روڈ پر 1 ارب 18 کروڑ روپے کی لاگت بھی آئے گی۔ مزید جانیں گے طیب سیف سے۔ طیب بتائیے گا۔ جنوبی پنجاب میں ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ کسی نہ کسی میگا پروجیکٹ کی جو نوید ہے وہ سنائی دیتی ہے۔ آج اگر ہم بات کرتے ہیں تو ملتان میں تو سیدہ والا بائی پاس سے لے کے ہیڈ محمد والا تک 11 کلومیٹر کا یہ روڈ ہے جو کہ ملتان بائی پاس کو ہیڈ محمد والا کے ساتھ منسلک کرتا ہے، اور وہاں سے وہ تمام ٹریفک جو لیا، میاں والی، کوٹدو، سناوا، مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، تونسا، راجنی پور سے ملتان شہر میں داخل ہوتی ہے، یا اس میں ملتان کو بائی پاس کرتے ہوئے ڈی ایچ اے جانا ہوتا ہے، یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، یا وابے ٹاؤن جانا ہوتا ہے، وہ تمام کی تمام ٹریفک جو ہے یہی سے گزرتی ہے۔ تو یہ جو تمام روڈ ہے انتہائی مصروف ترین روڈ کہلاتا ہے۔ روڈ سنگل ہونے کی وجہ سے شہریوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، یہاں سے راہگیروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جس کے بعد ضلع پنجاب نے خصوصی طور پہ یہ اسکیم جو ہے وہ اپروو کی ہے۔ جو فائنانس کمیٹی ہے ڈیولپمنٹ کی، اس کے پاس یہ اسکیم گئی تھی
और उन्होंने फौरी तौर पर स्कीम को अप्रूव किया है और इसके ऊपर 1 अरब 18 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये स्कीम जो है इससे मुकम्मल हो चुकी है, फाइल वर्क इसका मुकम्मल हो चुका है और आने वाले बजट के अंदर इस स्कीम को मुकम्मल किया जाएगा और 1 साल के कलील मुद्दत के अंदर ये तमाम की तमाम स्कीम जो है वो मुकम्मल कर दी जाएगी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो तमाम ट्रैफिक जिसने शहर के अंदर दाखिल होना होता है MDA चौक पर और उसके बाद अगर खासतौर पर अगर हम बात करते हैं कलमा चौक पर और साथ ही नवा शहर चौक की तरफ जाना हो तो तमाम की तमाम ट्रैफिक शहर के अंदर जाने के लिए भी यही रूट अपनाती है, लेकिन अब उन तमाम लोगों को सहूलत दस्तयाब होगी कि एक तो उनको डोर कैरेज भी मिल जाए। तैयब सैफ, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मियांवाली में मेडिकल स्टोर मालिकान के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला, स्टोर मालिकान को दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। मेडिकल स्टोर मालिकान लाइसेंस घर बैठे हासिल करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ड्रग कंट्रोलर महविश निगाह का कहना है कि स्टोर मालिकान ऑनलाइन लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। मजीद जानेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर बताइएगा। से मेडिकल स्टोर मालकान के लिए एक ऐसा इकदाम सामने आया है, लाइसेंस रेवेन्यू करवाने के सिलसिले में या नया लाइसेंस जो है हासिल करने के सिलसिले में अब ऑनलाइन प्रोसेस होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल मैडम महविश निगाह न्याजी साहब, आपसे सवाल, क्या क्राइटेरिया होगा? क्राइटेरिया बिल्कुल पहले जैसे ही है। पहले जो चीजें हम लोग ऑनलाइन अपने दफ्तर में बैठ के करते थे, हमारे पास जो है स्टोर के मालिकान और क्वालिफाइड पर्सन आया करते थे और हम लोग उनके जो एप्लीकेशन है उनको ऑनलाइन करते थे। अब हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इकदाम हुआ है कि ये लोग अपने घरों में बैठ के अपना एक लॉगिन बनाएंगे पोर्टल के ऊपर। वो एक CDSL पब्लिक पोर्टल है, उसके ऊपर ये लोग अपना लॉगिन बनाएंगे और घर बैठ के ही अपनी एप्लीकेशन को अपलोड करेंगे और साथ साथ जो है वो उसके ऊपर जो इकदाम हो रहे होंगे वो उसको देखते रहेंगे और चेक एंड बैलेंस रखेंगे। हमारे पास सिर्फ 15 दिन के अंदर का टाइम पीरियड होगा जिसके अंदर जो है हमने उनकी फाइल की स्क्रूटनी करके और वो हमने उन फाइलों को डिस्पोज ऑफ करना है ताकि इन लोगों को अपने लाइसेंसेस मिल जाए। तो ये मेरे ख्याल में हुकूमत की तरफ से एक अच्छा इकदाम है कि लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और लोग घर बैठ के इसको ऑनलाइन कर लेंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हुकूमत की जानिब से ये एक ऐसा इकदाम सामने आया है कि ऑनलाइन घर बैठे तमाम मालकान जो हैं अपने लाइसेंस रेवेन्यू भी करवा सकते हैं, उसके अलावा जो है नया लाइसेंस भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इस पर कितना अमल दरामद होता है। बेहतर अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गैस लोड शेडिंग का जिक्र कर लेते हैं। जनूबी पंजाब भर में गैस कंप्रेसर कम प्रेशर का बायस बनने लगे। गैस कंप्रेसर्स के इस्तेमाल से सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। गैस कंप्रेसर्स पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद है। गैस सार्फिन कहते हैं हुकूमत पाबंदी हटा दे या गैस पूरी दे, कंप्रेसर्स के बगैर गुजारा नहीं है। मजीद जाने के मौसम मुल्क से मौसम कंप्रेसर्स लग गए हैं, ऐसे में मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं गैस सार्फिन की। जी, इन दिनों गैस का बहरान सर चढ़ के बोल रहा है और हुकूमती पॉलिसीज के बाद वो तमाम तर चीजें ऑब्वियसली अवाम ही भुगत रहे हैं। लेकिन इसमें एक हल ये है कि जो कंप्रेसर हैं, छोटी छोटी मशीनें हैं, उसके साथ लोग गैस थोड़ी बहुत ले रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने अब पाबंदी लगाई हुई है कि ये इलीगल है। तो यहाँ के अवाम कुछ शॉप्स पर आए हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि इसकी जरूरत है या फिर गैस की है। अगर गैस मामूली सी आएगी, अगर गैस पूरी नहीं होगी तो ये जरूरत की इस्तेमाल की चीज है ताकि बच्चे नाश्ता कर सकें। इसको मशीन लगा के बच्चों का नाश्ता करा देते हैं ताकि इतनी की हो के बच्चों का नाश्ता तैयार किया जा सके। अगर ये ना हो तो गैस पूरी है तो हमें जरूरत ही नहीं है इसकी। ठीक है, तो हम ऐसे बिल्कुल जी, हम भी यही चाहते हैं कि अगर गैस हमें मुहैया पूरी होगी तो इंशाल्लाह हमारी तो ये नहीं होगी। इलीगल है, ये जुर्माना लगाते हैं। ठीक है, ये जुर्माना 50-50 हज़ार लगाते हैं। एक 2 महीने के लिए हमें दोबारा मीटर नहीं लगता, मीटर उतार के ले जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी गैस पूरी हो मुकम्मल, ताकि हम अपने लीगल तरीके से हमारा इस्तेमाल हो। जब अनलीगल वो कहते हैं फिर हमें भी जुर्माने भी लगाते हैं। या तो गैस पूरी दे दें या फिर इसको लीगल करार दे दें, लेकिन ये मार्केट के अंदर फरोख्त भी हो रहा है, रिपेयर भी हो रहा है और लोग इसके ऊपर अब ये बोलने लगे हैं कि 50,000 का जुर्माना करने की बजाय इसको लीगल करार दिया जाए या फिर गैस दी जाए। ये बिल्कुल मुल्क, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में रसोई गैस की कमी पूरी करने के लिए गैस कंप्रेसर्स का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। पाबंदी के बावजूद गैस कंप्रेसर्स का इस्तेमाल जारी है। गैस सार्फिन ने गैस कंप्रेसर्स को मसले का हल करार दे दिया है। शहरी क्या कहते हैं, आप भी सुनिए।
50,000 लगाते हैं, एक दो महीने के लिए हमें दोबारा मीटर नहीं लगता, मीटर उतार के ले जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी गैस पूरी हो मुकम्मल, ताकि हम अपने लीगल तरीके से हमारा इस्तेमाल हो। तो गैस आता ही नहीं है, अगर गैस आता है तो वो तो गाड़ियां लेके फिर रहे हैं बदमाशों की तरह, जिसका चाहते हैं मीटर उतार के ले जाते हैं। गुंडागर्दी है ये तो बहुत ज्यादा उनकी। घर में लगा रहे हैं लोग, छुप के, मजबूरी है। गैस पूरी हो तो ये नहीं लगाएंगे, अगर गैस आ गई तो हटा देंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मजबूर इस्तेमाल करना पड़ता है ये। या तो बाहर से खाना लें या तो फिर घर से ये सहूलत ओके कर दें, जिसकी वजह से गरीब लोग ये खाना बना सके सही तरीके। चाहे हवा भी आ रही है, मीटर से तो गुजर के आ रही है, वो भी है। और उल्टा बदमाशी ये है कि 50,000 60,000 जुर्माना, मीटर उतर गया 6 महीने फिर चक्कर लगेंगे। मशीन लगा के बच्चों का नाश्ता करा देते हैं ताकि इतनी की हो कि बच्चों का नाश्ता तैयार किया जा सके। अगर ये ना हो तो टीरी खान में सुई गैस के कंप्रेसर ने कंप्रेसर का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। गैस की कमी दूर करने के लिए शहरियों ने कंप्रेसर का इस्तेमाल शुरू कर दिया। कंप्रेसर इस्तेमाल न करने वाले शहरी सुई गैस के कम प्रेशर से भी महरूम होने लगे। बात करेंगे आशीष बाग से। आशिक, कहिएगा कैसी मुश्किलात हैं गैस सार्फिन को? गाजी खान में भी एक जानब सुई गैस की जो लोड शेडिंग है वो जारी है, सुई गैस की शॉर्टेज है, जिसके पास लोगों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। जबकि अगर बात की जाए कंप्रेसर की, सर्दियों में खसूसी तौर के ऊपर गैस के प्रेशर को बेहतर करने के लिए घरों में कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है, जो ना सिर्फ ख़तरनाक है बल्कि नुकसान भी पहुंचा सकता है। उधर बहावलनगर में सर्दी आते ही गैस नायाब हो गई है। गैस लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कासिम अली शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। कासिम, बताइएगा। में गैस लोड शेडिंग का मरला जो है वो शुरू हो जाता है, जिससे बचने के लिए और प्रेशर हासिल करने के लिए शहरी जो है वो अपने घरों में गैस के साथ जो है कंप्रेसर लगाते हैं ताकि जो है वो इसका प्रेशर ज़्यादा है। लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक अमल है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये वो कंप्रेसर हैं जो कि शहरी जो अपने गैस लोड शेडिंग के दौरान अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कितना ख़तरनाक है, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऐसी दुकान पर, यहाँ पर जो है वो इस कारोबार से वाबस्ता अफराद जो कि कंप्रेसर का कारोबार करते हैं, इनसे बात कर लें। आप बताइएगा जी, लोग जो अपने घरों में कंप्रेसर लगाते हैं ताकि गैस का जो प्रेशर है वो ज़्यादा से ज़्यादा है, तो ये कितना ख़तरनाक अमल है? ये कंप्रेसर लगाना बहुत ख़तरनाक अमल है। लोग लगाते हैं अपनी सहूलत के लिए, मगर लेडीज़ जब किचन में अकेली होती हैं तो उनको नहीं पता लगता कि कंप्रेसर किस टाइम चलाना है, किस टाइम ये चूल्हा ऑन करना है। अगर चूल्हा पीछे से ऑन नहीं होगा तो इस पैप को फटने की बड़ी वजह बन जाता है, जिससे आपको आग लगने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। और लेडीज़ अकेली होती हैं किचन के बीच में, अगर आग लग जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आप अपने फ़ायदे के लिए कंप्रेसर लगाते हैं, फिर दूसरे लोगों को गैस मुहैया नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हर आदमी परेशान होता है, लिहाजा इसको लगाना नाजायज़ है, ये नहीं लगाना चाहिए। बस मेरी ये है कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जी बिल्कुल, कंप्रेसर लगाना इंतहाई ख़तरनाक अमल है। ख़वातीन किचन में अकेली होती हैं, अपने फ़ायदे के लिए प्रेशर हासिल करने के लिए ये लगाती हैं, लेकिन ये किसी वक्त भी जो है वो किसी वक्त भी फट सकता है। शेख, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुनासिब दाम न मिलने पर क्रशिंग सीजन मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। जनूबी पंजाब के किसानों ने गन्ने की मुनासिब कीमत का मुतालबा कर दिया। किसानों का कहना है कि इस साल पैदावार बेहतर है, हमें कीमत भी ज्यादा चाहिए। मुनासिब कीमत न मिलने पर गन्ने ना बेचने की धमकी दे दी। बात करेंगे अली रियाज से। अली, कहिएगा क्या कहते हैं किसान? बिल्कुल, नवंबर के आगाज से ही जो सबसे अहम फसल है वो है कमांद, यानी कि गन्ने की। और गन्ने की जो कटाई का आगाज है वो 15 नवंबर से शुरू हो जाता है। तो इस वक्त मौजूद हूं मैं मुल्तान के नवाही इलाके शुजाबाद में, और यहाँ पर खेतों में जो किसानों की जो मेहनत है वो वसूल होना शुरू हो गई है। काश्तकार इस बार खासे पर उम्मीद है, कह रहे हैं कि पैदावार खासी बेहतर है। तो इस बार जो पर एकड़ यील्ड है, जो पैदावार है वो भी खासी ज्यादा होगी। तो मजीद बात करेंगे, मेरे साथ काश्तकार मौजूद है। क्या अक्सर चाचा जी, क्या कटाई शुरू की गई है? इन साल फसल की जड़ी है? फसल अच्छी है, पानी की जो है ना कमी नहीं आई, फसल अच्छी है, मेहनत करी है हमने, बिल्कुल मेहनत करी है। बाकी अब हम हुकूमत हमारे को रेट अच्छा देना चाहिए, नहीं तो काश्तकार मर जाएगा बेचारा। साल की फसल होती है ये, मेहनत करते करते 1 साल लग जाता है इस फसल को। अगर हमारे को काश्तकार को मतलब वो पैसा पूरा नहीं मिले तो काश्तकार रुल जाएगा। जी, काश्तकार जो इस बार अगर कीमत अच्छी नहीं मिली तो रुल जाएगा। मेरा कैमरा एडी ने आपको दिखाया कि ये
गन्ने की जो फसल है मुकम्मल तौर पर तैयार है और इसके जो कटाई का जो अमल है वो भी शुरू हो गया है। काश्तकारों की मेहनत वसूल हो चुकी है। खरीफ की सबसे अहम फसल जो है वो गन्ना ही है, जिसकी गंदम की बिजाई से कबल 15 नवंबर को कटाई का आगाज हो जाता है। तो 15 नवंबर का आगाज हो गया था। लिजाज आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लेकिन खबरों की जानिब बढ़ते हुए नाज़रीन आपको बताएं कि सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अतील कहते हैं बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में महंगी खाद फरोख्त नहीं होने देंगे। माह नवंबर में जनूबी पंजाब में महंगी खाद फरोख्त करने वाले 60 दुकानदारों को गिरफ्तार किया और मुकदमात भी दर्ज किए गए। मज़ीद जानेंगे महमूद ज़हीर से। महमूद बताइएगा क्या कहना है साकिब अतील का? पंजाब भर में फार्मर परेशान है महंगी खादों के बायस। महंगी खादें क्या खुद साख्ता हैं या उनको ब्लैक किया जा रहा है, इस हवाले से महकमा ज़राअत की सद तक एक्टिव है। सेक्रेटरी ज़राअत है जनूबी पंजाब के साकिब अतील साहब हमारे साथ। सर, इस हवाले से बताइएगा, जनूबी पंजाब के किसान परेशान हैं, कितना एक्शन ले रहे हैं आप लोग? थैंक यू जी। बिल्कुल, इसमें हमें कुछ अर्सा बाकी तकलीफ किसानों को रही है चंद दिन। उसके लिए यही लोगों ने जिस तरह एक तो रेट इंटरनेशनल जो कि महंगे थे, तो यहाँ पर एक महंगाई हुई। कुछ किसान चाह रहा था, कुछ जो डीलर्स थे, कुछ दो सारे एक तरह के नहीं होते, अच्छे लोग भी होते हैं। जो 2 नंबर डीलर थे जो ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में ब्लैक कर रहे थे, छुपाना शुरू कर दिया था, जिसके बाद हमें एक्शन करना पड़ा। हमने अभी नवंबर में अब तक कोई 60 से ज्यादा FIR दी हैं साउथ पंजाब में और इतने ही लोगों को अरेस्ट किया है और लाखों बोरी हम बिला वाला कह सकते हैं हमने मुख्तलिफ इलाकों से पकड़ टोटल अगर कर दो पकड़ी और फिर उन्हें कंट्रोल रेट जो गवर्नमेंट जो रेट भी था उस पर बिकवाया। अच्छा सर, मैं इसमें ये जानना चाहूंगा कि तमाम लोग ना खराब होते हैं ना तमाम लोग ठीक होते हैं। आपके महकमा ज़राअत में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन लोगों को पनाह देते होंगे या इनकी पुष्ट पनाही करते होंगे, जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज हैं, जो ब्लैक में मार्केटिंग करके खाद को बेचते हैं, तो उनके खिलाफ कुछ सरकारी अफसरान या मुलाजमिन के खिलाफ भी एक्शन लिया गया? जी, अभी तक हमारे बिल्कुल आपकी बात ठीक है, हर तरह के होते हैं, लेकिन अभी इस वक्त ये सूरत हाल है कि वो जुर्रत नहीं कर पाएंगे क्योंकि तमाम इंतजामिया AC DC कमिश्नर और तमाम इंतजामिया को गवर्नमेंट इस पर पाबंद किया है कि किसी किस्म की होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग ना होने दी जाए। जहां भी इतला मिलती है, चाहे होर्डिंग की, ब्लैक मार्केटिंग की, जाली खाद की, हम तमाम एक्टिव हैं। इसलिए मुश्किल है, लेकिन स्टिल अगर हमारे पास कंप्लेंट जो भी आ रही हम स्पेयर नहीं करेंगे। खादों को महंगे दामों फरोख्त नहीं होने देंगे, जखीरा नहीं होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे जी, इंशाल्लाह। अभी इस वक्त आप देखें DAP मार्केट में भरपूर अवेलेबल है। अभी मैं देख के मार्केट से आ रहा हूँ, डोडरा में देखा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल महंगे नहीं होने देंगे। जो सरकारी रेट होगा उस पर फरोख्तगी मुमकिन बनाना होगी डीलर्स को और सरकारी रेट मुमकिन बनाना होगी। महमूद आपका शुक्रिया। खानेवाल में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया है। जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब और साबिक सूबाई वजीर मोइन रियाज कुरैशी की PTI उम्मीदवार नूरीन निशात से मुलाकात हुई है। साबिक सूबाई वजीर कहते हैं इलेक्शन तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। मजीद जानेंगे जुनेद अनवर से। जुनेद बताइएगा क्या कहना है PTI के उम्मीदवारों का? जी बिल्कुल, सूबाई हल्का 206 खानेवाल के अंदर जो है वो इलेक्शन का बगल जो है वो बच चुका है। उम्मीदवार की जानिब से जो है वो अपनी कैंपेन का सिलसिला भी जारी है। मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मोइन रियाज कुरैशी और शहबाज कुरैशी जो है वो खानेवाल आए हैं और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जो है वो कैंपेन भी चला रहे हैं। उनसे मुलाकात भी की, बात भी करेंगे। कोई कांटेदार मुकाबला नहीं, एक तरफा है। हमारी ये कैंपेन है और अल्हम्दुलिल्लाह लोग बहुत एतमाद कर रहे हैं हमारे ऊपर। और पहले जो मेरे हस्बैंड निशात खान डाहा, उन्होंने इतना काम किया हुआ है शहर के लोग और इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब लोगों की। पुरमुतमईन इलेक्शन इंशाअल्लाह। अच्छा मोइन भाई, कैसे देखते हैं कि एक महंगाई का एक बड़ा मसला जो तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ रहा है और ज़िमनी इलेक्शन भी है, क्या देखते हैं कि महंगाई का जो अंसर है वो किस कदर इस पर जो है वो असरअंदाज होगा? इस इलेक्शन के अंदर ये सीट खाली हुई है निशात खान डाहा साहब, जो कि यहाँ से 3 दफ़ा MP रहे हैं उनकी डेथ के बाद। और निशात खान डाहा साहब एक हर दिल अजीज़ यहाँ खानेवाल के लीडर थे, बल्कि अपना वर्कर थे और उनका गली गली महल्ले महल्ले हर जगह उनका राब्ता था। और अवाम भी अब उनकी जो वाइफ हैं वो कॉन्टेस्ट कर रही हैं और जो मैंने देखा है 2-4 दिनों के अंदर कि अवाम का पूरा और भरपूर किस्म का भरोसा और साथ इनके साथ है। जी बिल्कुल, जो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनकी भी इलेक्शन के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है वो नजर आ रही है और उनका कहना है कि तहरीक आ रही है। बहुत शुक्रिया जुनेद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस स्मोक के खात्मे के लिए मुतहरिक हो गई है। स्मोक खत्म करने के लिए ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और रिक्शों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। एक हफ्ते में 4500 से ज्यादा गाड़ियों के चालान किए गए। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि स्मोक के खात्मे के लिए इन्फोर्समेंट टीमें मुतहरिक हैं। मजीद जानेंगे यासिर मजीद से। यासिर बताइएगा
कितना एक्शन हुआ है? जी, स्मोक के खात्मे के लिए मुल्तान में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक हफ्ते के दौरान धुआं छोड़ने वाली तकरीबन 5,000 के करीब गाड़ियों, ट्रैक्टर ट्रालियों, रिक्शों और मोटरसाइकिलों के चालान किए गए हैं, जबकि 15 गाड़ियां थानों में बंद भी कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक हर गाड़ी के ड्राइवर को 500 रुपए तक जुर्माना भी किया जा रहा है, जबकि आगाही मुहिम का सिलसिला भी जारी है। सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद है। जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, लोगों को नहीं बताया जाएगा ये स्मोक का इश्यू जो है ना एक हार्ट इश्यू है और ये कितना जो है ना नुकसानदेह हमारी फिजा के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारे माहौल के लिए, तो तब तक लोगों में इस चीज़ का एहसास पैदा नहीं होगा कि हमने कैसे इससे जान छुड़वानी है। तो आप देख रहे हैं हमारी इन्फोर्समेंट टीम जो है वो साथ साथ कार्रवाई भी कर रही है ऐसी गाड़ियों के खिलाफ जो धुआं दे रही हैं, और उसके साथ साथ हम आज बोसन बाईपास चौक पे सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान का जो एजुकेशन यूनिट विंग है, हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जलील इमरान गिलजई साहब की स्पेशल हिदायत है कि मुल्तान शहर के तमाम चौक, तमाम एरिया, तमाम सड़कें जो है आप वहाँ खड़े होकर लोगों को अवेयरनेस दें और लोगों को आगाह करें कि खुदारा अपनी हिफाजत के साथ साथ इस माहौल को भी जो है आप आलूदा होने से बचाएं। जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम इक़दाम स्मोक के खात्मे के लिए किए जा रहे हैं। आपका शुक्र पंजाब है वो इन एक्शन है। तालिबात को कार से कुचलने वाली मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल की टीचर को बहाल कर दिया गया। टीचर को मुकम्मल होने तक बहाल किया गया है। SST इकरा जमशेद को 25 अक्टूबर के नोटिफिकेशन में मुअत्तल किया गया था। तफ्तीश मुकम्मल होने तक टीचर को ओहदे पर बहाल किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, तालिबात को कार से कुचलने वाली मुस्लिम गर्ल्स हाई स्कूल की टीचर को बहाल कर दिया गया। टीचर को इंक्वायरी मुकम्मल होने तक बहाल किया गया। SST इकरा जमशेद को 25 अक्टूबर के नोटिफिकेशन में मुअत्तल किया गया था। तफ्तीश मुकम्मल होने तक टीचर को ओहदे पर बहाल किया गया। मुजफ्फरगढ़ शहर के वस्त में मौजूद फयाज के अकबी गेट के साथ बनाए गए पब्लिक वॉशरूम कई अरसे से बंद हैं। शहरियों का कहना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली की वजह से पब्लिक वॉशरूम्स बंद हैं। पार्क में आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे आमिर डोगर से। आमिर, कहिएगा ये क्यों बंद हैं टॉयलेट्स, क्यों ने फंक्शनल नहीं किया गया? बिल्कुल, फयाज पार्क के अकबी गेट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मुजफ्फरगढ़ में पब्लिक टॉयलेट्स जो हैं वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली की वजह से अरसा दराज से बंद है। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये वो पब्लिक टॉयलेट्स हैं जिनकी लाइट्स तो ऑन रहती हैं रात भर और बाहर से जो इनको ताले लगाए गए हैं। जो पार्क में आने वाले शहरी हैं फैमिलीज के साथ और यहाँ पर जो इंतजार करने वाले हैं जो एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले, क्योंकि पास ही बस अड्डा, उन शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मुझे ये बताएगा कि कितने अरसे से ये वॉशरूम्स बंद पड़े हैं? अब काफ़ी टाइम हो गया, हम लोग का आना जाना लगा रहता है, बस इस्तेमाल करते थे। तकरीबन 1.5-2 महीना पहले आए थे तो वॉशरूम इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ी, तो यहाँ आए तो देखा उस वक्त भी बंद था। तकरीबन इसका मतलब ये था कि फिर 2-2.5 महीने से ही बंद पड़ा है ये, और फिर आना जाना लगा रहता है। काफ़ी पब्लिक को मतलब मसला मसाइल का दरपेश है कि वॉशरूम। ये बताएगा पार्क की सूरत हाल कैसी है? पार्क की भी वही हाल है, गंदगी है, सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। अब जो भी आता है खाता पीता है वहीं गिरा देता है, कोई सिस्टम ही नहीं है अंदर। कोई चेक एंड बैलेंस होता है, चलो एक बंदा तो हो जो कम से कम देखभाल करने के लिए, वहाँ कोई भी इंतजामिया का कोई निज़ाम ही नहीं है। शहरी इस हवाले से खासे परेशानी का शिकार है और यही मुतालबा करते नजर शहरी आते हैं खासे परेशान है। आमिर डोगर। मुल्तान में नेशनल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने की। इजलास में मुख्तलिफ इंतजामी अमूर ज़ेर बहस आए हैं। सूबाई वज़ीर सेहत की सफाई इंतजामात को बेहतर बनाने की हिदायत, अद्वियात की बरवक्त खरीदारी यकीनी बनाई जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ऐसा कहा। तिब्बी आलात और मशीनरी की मुरम्मत में ताखीर न की जाए। इजलास में नेशनल यूनिवर्सिटी का सालाना बजट भी ज़ेर बहस लाया गया है। नेशनल यूनिवर्सिटी में BS टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के इजरा की मंजूरी दे दी गई है। अहम खबर जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में नेशनल यूनिवर्सिटी सिंडिकेट का इजलास हुआ है। इजलास की सदारत सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने की है। यह मनाज़िर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इजलास में मुख्तलिफ इंतजामी अमूर ज़ेर बहस आए। सूबाई वज़ीर सेहत की सफाई इंतजामात को बेहतर बनाने की हिदायत। मजीद बात करेंगे बिलाल नियाज़ी से। बिलाल, कहिएगा सिंडिकेट इजलास हुआ है, क्या गुफ्तो शुनीद हुई आज इसमें? जी बिल्कुल, आज नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का 8वां सिंडिकेट इजलास 9वां सिंडिकेट इजलास आज मुनक्किद हुआ, जिसकी जो सदारत है वो सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने की, जबकि इस मौके पर सिंडिकेट के मेंबरान और वाइस चांसलर जो नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो भी मौजूद थे। इस हवाले से जो गुज़िश्ता सिंडिकेट के फैसले थे उनका इम्प्लीमेंट के हवाले से सूबाई वज़ीर
सेहत को आगाह किया गया। उस मौके पर जो हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि सरकारी अस्पतालों में मेडिसिन के हवाले से मसाइल का सामना होता है, उस पर सूबाई वज़ीर सेहत ने हिदायत जारी की कि मेडिसिन के हवाले से जो कमी है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि हुकूमत पंजाब उनका ये कहना था कि 248 अरब रुपए सालाना दे रही है अस्पतालों को, जिस हवाले से इसमें किसी किस्म की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके साथ साथ जो मेन फैसले किए गए हैं उस हवाले से हिदायत की गई कि मास्टर प्लान तैयार किया जाए निष्ठा यूनिवर्सिटी के लिए। उसके तहत मास्टर प्लान में जो बिल्डिंग है उसकी रेनोवेशन की जाए। उसके अलावा जो तिब्बी आलात की बेहतरी मुरम्मत और खरीदारी के हवाले से भी हिदायत जारी की। जबकि जो यूनिवर्सिटी के हवाले से जो अहकाम है, जो हम जिससे यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो इस हवाले से मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं उनको शुरू करने की मंजूरी दी गई है। अलाइड हेल्थ साइंस कॉलेजेस में जो BS टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स हैं उनके आगाज की मंजूरी दी गई है। उसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के आगाज की मंजूरी दी गई है। निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस हवाले से इसका जो अलहाक है, जो इम्तहानात होते हैं वो जो इस हवाले से लाहौर यूनिवर्सिटी से उनके साथ होते हैं, तो इस हवाले से ये कहा गया कि आप यूनिवर्सिटी खुद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का आगाज करें और इस हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं, उसकी मंजूरी भी दी गई है। जबकि जहाँ बात करें तो बजट के हवाले से ये कहा गया कि जो बजट मौजूद है उसके मुताबिक जो चीजें उनको बेहतर से बेहतर बना दी, जबकि इस मौके पर बेहतर से बेहतर बनाया जाए। बहुत शुक्रिया बिलाल न्याजी, आप हमें तफसीलन अपडेट कराए। और डेंगू के वार कम ना हो सके, जनूबी पंजाब में डेंगू के वार छटने का नाम नहीं ले रहे। डेंगू के मरीजों की शरह में इजाफा हो गया है। जनूबी पंजाब में डेंगू के मजीद 8 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। जनूबी पंजाब में डेंगू ने पर फैलाना शुरू कर दिए। डेंगू के मरीजों की शरह में इजाफा हो गया। जनूबी पंजाब में डेंगू के 8 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। हेल्थ सेक्रेटरीट जनूबी पंजाब ने रिपोर्ट जारी कर दी है। जनूबी पंजाब में डेंगू के वार थमने का नाम नहीं ले रहे। डेंगू के मरीजों की शरह में इजाफा हुआ है। जनूबी पंजाब में डेंगू के मजीद 8 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। हेल्थ सेक्रेटरीट साउथ पंजाब ने रिपोर्ट जारी कर दी। और अब जिक्र करेंगे जीप रैली का। सयाहों का इंतजार हुआ खत्म। थल के सहरा का शहर सर चढ़कर बोलेगा। थल जीप रैली और मेला कल से शुरू होने जा रहा है। सुनहरी रेत पर बने ट्रैक्स पर गाड़ियां फ्राटे भरेंगी। जीप रैली और मेले की तैयारियां मुकम्मल। थल जीप रैली और मेला कल से होगा शुरू। सुनहरी रेत पर बने ट्रैक्स पर गाड़ियां फराटे भरेंगी। जीप रैली और मेले की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। 3 रोजा जीप रैली का इनेकाद किया जा रहा है थल में। थल के सहरा में शहर चढ़कर बोलेगा। सयाहों का इंतजार खत्म हो गया। थल जीप रैली और मेला कल से होगा शुरू। सुनहरी रेत पर बने ट्रैक्स पर गाड़ियां फराटे भरेंगी। जीप रैली और मेले की तैयारियां मुकम्मल। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फसलों को कब और कितना पानी चाहिए। गूगल अर्थ मैनेजमेंट ने पानी की जरूरत और अखराज को आसान बना दिया। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीमल खान में सेमिनार गूगल अर्थ इंजन के जरिए वाटर मैनेजमेंट बारे आगाही दी गई। तफसीलात हासिल करेंगे बोर्ड चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम बताइएगा सेमिनार से मुतालिक। ज़राअत में जिद्दत आ रही है और ज़राअत की जिद्दत ज़राअत को तकवीयत दे रही है और गूगल अर्थ को भी ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाटर मैनेजमेंट के हवाले से किस तरह गूगल अर्थ को इस्तेमाल किया जाता है, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी किसके बारे में सेमिनार इनकाद किए। डिफरेंस है गूगल अर्थ और गूगल अर्थ इंजन, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। गूगल अर्थ का जो यूज़ है वो मेनली आपने किसी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है कि किसी जगह पे कोई लेक है, डैम है, सड़क है, तो आप गूगल अर्थ पे देख सकते हैं। अब गूगल अर्थ इंजन जो है वो बड़ा पावरफुल टूल है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब फॉर इंस्टेंस हमें एक रिक्वेस्ट आई प्लानिंग कमीशन की तरफ से कि बलूचिस्तान में 50 के करीब डैम्स बने, तो आप वेरीफाई करें कि वो डैम्स एक्चुअली बने हैं, कहाँ पे बने हैं। इस तरह की जब आपको ज़रूरत होती है कि उस डैम से फिर आगे इरिगेशन हो रही है, कोई नया एरिया डेवलप हुआ है, तो आप थोड़ी सी कोडिंग करते हैं और वो गूगल अर्थ इंजन में करते हैं। वो आपको एक्चुअली दिखाता है कि जी उस डैम की लोकेशन क्या है, उसकी पिक्चर कब ली गई, उसमें आया कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, और उससे आगे अगर आप कोई इरिगेशन कर रहे हैं तो वो एरिया जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ थी वो पहले आपको गूगल अर्थ में नहीं मिलती थी। अब गूगल अर्थ इंजन में हम आप स्टूडेंट्स को ये सिखा रहे थे कि ये फ्री ऑफ टूल है, इस पर कंप्यूटेशन जो है आपको गूगल के सर्विस पे करनी पड़ती है, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। लेकिन अगर आपको एप्लीकेशन इस तरह की चाहिए तो वो आप
देख सकते हैं वाटर मैनेजमेंट के लिए। सिमिलरली हमने उनको बताया कि अगर आपने वाटर ऑर्डरिंग करनी है, जिस तरह हम तरबेला से पानी ऑर्डर करते हैं, फिर वो पंजाब में भी जाता है, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, तो वो ऑर्डरिंग के लिए जो है आप गूगल अर्थ इंजन को यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को जो है एजुकेशन दें ताकि वो इन टेक्नोलॉजीज को, टूल्स को सीखेंगे तो आगे हमारे अच्छे इंजीनियर्स बन के निकलेंगे और उससे हमारी वाटर मैनेजमेंट इंप्रूव होगी। लेकिन वाटर मैनेजमेंट इंप्रूव करने के हवाले से जदीद टेक्नोलॉजी वाटर मैनेजमेंट जो है वो मजबूत होगी। आसिम सिद्दीक आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा।